Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today our focus will be basically on solving the exercise questions of life processes. In the previous lecture we studied the whole chapter of life process in which we covered every topic in detail. May it be the difference between living and non-living, may it be the different types of nutrition, different types of nutrients, the process of nutrition, the process of transportation or circulation, the process of respiration, the process of excretion and everything which was required for that chapter. So we did all of it in detail. So today our focus is on exercise question. We have also done the in-text question in a separate video, so you will be getting that link in the description. And today our focus will be on the exercise question. So let's start with the exercise question of NCERT life processes. Okay. So let's see our very first question. Our very first questions are the first 4 questions are MCQ. So let's solve each of them. The kidney in human beings are a part of system for. Question is saying कि kidney is a part of which system of human. Human के किस system का part होता है kidney? तो we are well aware that excretory system का part होता है kidney. Kidney is the part of the excretory system or the excretion. The second question is the xylem in plants are responsible for. So xylem is a vascular tissue which is present in plants which helps in the transportation of water. Xylem is associated with the transportation of water, and if I talk about phloem, so then it is associated with the transportation of food like glucose, amino acid, etc. etc. Okay. The third question, the autotrophic mode of nutrition requires. What is the requirement of autotrophic nutrition? The question is basically asking कि जो autotrophic mode of nutrition perform करने वाले organism होते हैं उनको क्या चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए. So they need inorganic raw material which is carbon dioxide and water. They need carbon dioxide and water. From that they prepare their food, that is glucose, and as a byproduct oxygen is formed. The third question is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy takes place in. So what is this pyruvate? So हमारे पास शुरू में होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. There is a process which you will study in further classes which is called as glycolysis and it occurs in the cytoplasm of our cells. तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में and then this pyruvates get converted into either there is it depends, like if there is absence of oxygen then the product is ethanol. If there is presence of oxygen then then the product is ATP and carbon dioxide and H2O. So our answer for this will be mitochondria because this pyruvate ka breakdown, the breakdown of pyruvate basically occurs in the mitochondria. Okay, next question. How are fat digested in our bodies? Where does this process takes place? So आप सबको पता है कि फैट का जो डाइजेशन है यानी कि फैट का जो ब्रेकडाउन है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता. जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन डायरेक्टली हो जाता है, प्रोटीन डायरेक्टली ब्रेक कर जाता है पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, बट ये जो है कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्टली. पहले इसका इमल्सिफिकेशन करना होगा एंड देन इमल्सिफिकेशन के बाद इसका ब्रेकडाउन होगा और इसका ब्रेकडाउन करेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेजेस. पैंक्रिया से एंजाइम्स आएंगे वो इसका ब्रेकडाउन करेंगे. पैंक्रिया से एंजाइम आएगा लिपेज, तब जाके इसका ब्रेकडाउन होगा. ठीक है. तो फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. उससे पहले क्या होता है? इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन कैसे होता है? इमल्सिफिकेशन के लिए जो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, वो फैट के ऊपर काम करता है. फैट को क्या करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. फर्दर पैंक्रियास से लिपेज आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स है फैट के ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. ओके. The secretion of liver called bile breaks down large globules of fat into smaller globules. This is called emulsification of fat. The bile also makes the medium alkaline so that the pancreatic enzyme containing
lipase further digest fat to form fatty acid. This alkaline medium is required for the pancreatic enzyme to act on lipase. So एक तो इस बाइल का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना एंड साथ ही साथ ये एक एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है. जैसे कि आपको पता होगा कि स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए, तो वैसे ही फैट के ब्रेकडाउन के लिए इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम चाहिए. स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का काम होता है HCl का. बट इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने का काम होता है बाइल जूस का. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? फूड के डाइजेशन में, फूड के ब्रेकडाउन में सलाइवा का क्या रोल होता है? ये जो लार होती है इसका क्या रोल होता है डाइजेशन में? तो आप जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको ये चीज़ मैंने बताया है कि जो 20% स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होता है वो आपके मुंह में ही होता है. और ये मुंह में कैसे होता है? क्योंकि सलाइवा में एक तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सलाइवरी अमाइलेज और द टाइलिन विच ब्रेक डाउन स्टार्च. स्टार्च का ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं इनटू माल्टोज. ओके, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स salivary amylase and is released in our mouth. It breaks down starch into sugar, complex carbohydrate to simpler ones. Starch का जो simpler form ये बोल रहे हैं sugar, ये sugar कोई और नहीं, it is maltose. माल्टोज में ब्रेक करने का काम करता है salivary amylase, that is टाइलिन. अगर मैं स्पेसिफिकली वो salivary amylase की बात करूं तो वो है टाइलिन. एंड market around 20 to 30% of your starch gets digested in your mouth itself. So we can say कि digestion doesn't start in our stomach, it rather starts in our mouth. Okay, fine. Next question. What are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are the byproducts? इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं एंड बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? तो लेट्स सी. फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू टेक प्लेस द कंडीशन नेसेसरी आर लाइट. सबसे पहला लाइट कहां से मिल जाएगा? सन से मिल जाएगा. सन हमें लाइट प्रोवाइड कर देगा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड साथ ही साथ हमें क्लोरोफिल भी चाहिए. तो लाइट मिल जाएगा सन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का अवेलेबिलिटी, वाटर मिल जाएगा आपको रूट से मिल जाएगा, सॉइल से रूट्स पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे. और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा. स्टोमाटा आपको आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देगा. शुड रीच अ सेल व्हिच कंटेन क्लोरोफिल इन इट. Water first splits release oxygen and hydrogen. This process is called photolysis of water. Hydrogen then combines with carbon dioxide to form glucose. It's a very simple process. होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमाटा, साथ में मिला H2O. अब H2O का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलिसिस होगा. तो फोटोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, O2 बनेगा और हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे. क्या बनेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे. ओके, इसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस. और इसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए इन ग्रीन प्लांट्स को. ओके, तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन जो रिलीज आउट होगा. ठीक है. The byproduct of autotrophic mode of nutrition is oxygen which is released out to stomata. ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू वो प्लांट्स के बाहर चला जाएगा. ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल. The very next question. What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. Okay. तो आपको डिफरेंस बताना है एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में. तो नाम से समझ में आ रहा है एरोबिक मतलब एयर तो समथिंग एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन. एनारोबिक मतलब एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. तो that process of respiration which occurs in the presence of oxygen, that is called as aerobic respiration, and that mode of respiration that occurs in the absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration. तो ये सिर्फ एक डिफरेंस नहीं है, अभी बहुत सारे डिफरेंस है जो कि हम इस आंसर में देखेंगे.
तो सबसे पहला क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल दोनों होगा और साथ में एनर्जी तो बनेगा ही। ओके, नेक्स्ट, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर मैं एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो यहाँ अराउंड 38 एटीपी, एरोबिक रेस्पिरेशन में अराउंड 38 एटीपी का रिलीज होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन तो यहाँ अराउंड 2 एटीपी का रिलीज होता है। तो कंपैरेटिवली एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है और एनारोबिक में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और क्वेश्चन में साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है। तो हम ईस्ट के बारे में जानते हैं, ईस्ट हेल्प करता है फर्मेंटेशन एंड ऑल में। तो ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ, ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स जो ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट वाज वेरी इजी, वेरी सिंपल, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि एल्वेलाई को कैसे डिजाइन किया गया, आपके लंग्स में एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं, उसको कैसे डिजाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज कर सके। तो एक्चुअली जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर एक बलून जैसा होता है और इस बलून जैसा स्ट्रक्चर को इनफ्लैटेंड बलून जैसा होता है और ये क्या करता है, ये जो इनफ्लैटेंड बलून का स्ट्रक्चर होता है ये हेल्प करता है सरफेस एरिया बढ़ाने में, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज कराता है। ठीक है, द alveoli are present at the terminal end of bronchioles. They are balloon shaped structure which increases the surface area for the exchange of gases and they are richly supplied with blood vessels that takes the oxygen to different cells. तो at the site of alveoli it is richly supplied with blood vessels. blood vessels वहाँ present होते हैं जो हार्ट से आ रहे होते हैं और जो भी exchange होता है उन blood vessels में हो जाता है and then these blood vessel takes that oxygen to every cell of the body, to every cell of the body. Okay, the next question, what would be the consequence of the deficiency of hemoglobin in our body? तो हीमोग्लोबिन क्या था, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जो आरबीसी का जो पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आरबीसी, इट इज रेड कलर पिगमेंट जो ब्लड को कलर देता है रेड और साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी तो यही कर रहा है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन कम होगा तो आपको एनर्जी कम मिलेगा। लेट्स सी द आंसर। एंड आपको ये चीज़ पता होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया जैसी कंडीशन अराइज होती है। Hemoglobin is a red pigment present in our blood which carries oxygen to all parts of the body. If there is a deficiency of hemoglobin, then amount of oxygen releasing in our body cells will decrease, which may lead to release of less energy, leading to a disease called anemia. As explained कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ही जो मीडियम है वो कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम आएगा, ऑक्सीजन सेल्स तक कम आएगा तो ब्रेकडाउन भी कम होगा, ब्रेकडाउन कम होगा तो एनर्जी भी कम बनेगा और उससे एक कंडीशन अराइज होगा जिसका नाम है एनीमिया। और एनीमिया में क्या होता है, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, टायर्डनेस, हमेशा थकान रहेगा, कमजोरी, वीकनेस, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हीमोग्लोबिन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके बॉडी में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। ओके, तो जो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इन द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन और मे बी इट इज नेम्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपने पढ़ा होगा कि जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन का सिस्टम होता है जिसमें कि हार्ट में जो ब्लड होता है वो 2 बार आता है।
Double circulation consists of two types of circulation, systemic circulation and pulmonary circulation. हार्ट में हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे के सारे आपके हार्ट के राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से वो आपके राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और बीच में उन्हें मिलता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। फ्रॉम दैट राइट वेंट्रिकल इट मूव्स टू लंग्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेट होता है एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये वापस से हार्ट में आता है, वापस से जब हार्ट में आता है तो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के बीच में उसे दोबारा एक वॉल्व मिलता है और इस बार इस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके बॉडी के एक एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, सी द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, the right and the left. The right side of the heart receives deoxygenated blood from the cells and tissues and sends it further to the purification to lungs. The right side of the heart receives oxygenated blood from the lungs which pumped further and sent to all parts of the body through blood vessels. This is called as double circulation. The energy demand of the human being is too large, hence it is necessary for the separation of the oxygenated and the deoxygenated blood to meet its demand. तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि ये डबल सर्कुलेशन का नीड क्या है। इस डबल सर्कुलेशन का सबसे बड़ा नीड ये है कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं देना है, उन दोनों को सेपरेट करके रखना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना होगा और ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई डबल सर्कुलेशन इज वेरी एसेंशियल इन मैमल्स as well as in birds also. Okay, very easy, it must have been clear to you all. Our next question says, what are the differences between transport of material in xylem and phloem? Xylem और phloem में ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल्स में डिफरेंस क्या है? आप तब से वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो, अब तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स एंड द रेस्ट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फ्लोएम में। तो देखते हैं कि और भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड और फ्लोएम में फूड इन एक्वस फॉर्म इज ट्रांसलोकेटेड। ओके, द ट्रांसपोर्ट इज जनरली पैसिव और यहाँ पे जनरली एक्टिव। The passive transport is basically movement of substances from higher concentration and from higher concentration to lower concentration। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ATP चाहिए, यहाँ पे ATP का रिक्वायरमेंट होता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट करने में, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी चीज़ों को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक भी भेजना पड़ सकता है, तो हेंस यहाँ पे ATP इज नेसेसरी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज एक्टिव। ओके, यहाँ पे वेसल्स एंड ट्रैकेट्स जो होते हैं, जाइलम में जो एलिमेंट्स होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, वो यूजुअली डेड होते हैं, बट अगर फ्लोएम के जो एलिमेंट्स है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये लिविंग होते हैं। ये जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं vessels and tracheids, they are usually dead cells, and if I talk about sieve tube and companion cells जो phloem के elements होते हैं, they are living cells. So these are the three basic and major differences between the transport in xylem and the transport in phloem. Okay, the next and the very last question of the chapter, life process. Okay, what does the question says? Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning. Very simple question. Alveoli और kidney के nephrons का, alveoli और nephrons के बीच का आपको difference बताना है। Very simple. Alveoli respiratory system का part है, nephron excretory system का part है। Alveoli exchange करता है gases का और आपका nephron filtration करता है blood का। Alveoli क्या है? lungs का functional and structural unit, filtration का किडनीज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है। ये बेसिक डिफरेंस आपको तो ऐसे ही पता होंगे। देखते हैं, एल्वेलाई इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स, एज सिंपल। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी।
एल्वोलाई क्या करता है? इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कौन करता है? एल्वोलाई। और नेफ्रॉन का क्या काम है? इट रिमूव्स द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, जितना भी बॉडी में नाइट्रोजनियस वेस्ट बनता है, मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया, यूरिया को बॉडी से रिमूव करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन्स। एंड the third difference is it is the site of exchange of gases, alveoli is the site of exchange of gases, यहाँ पे O2 और CO2 का exchange होता है। and at the nephron site it is a site at the nephron site filtration of blood occurs, blood का filtration होता है at the nephron site. So these were all the questions of the NCERT exercise of life processes. So we have covered the whole chapter along with each topic. We have discussed every topic in detail, we have done all the in-text question, and in this video we have covered all the exercise questions. So we are done with the chapter of life processes. Our next chapter will be control and coordination. So stay tuned for that chapter, and I wish you all the very best. And if you like the video, please do like, please do hit the like button and subscribe the channel, and keep learning, keep growing. Thank you so much.